ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ। संडे वाला दिन दोपहर को अगर वहाँ से लेकर अगर इधर आप क्रॉस करिए गया कुछ भी कपड़े लत्ता लेने के लिए जाए, मेरा भाई भी आज दो तीन महीना हो गया उधर किया था रजनीश नगर कपड़ा लेने के लिए, उसको मोबाइल छीन लिया, उसको बोनोई को भी एक बार पकड़ लिया था लाइन पे, उसको भी मारपीट किया दिन में ही। मतलब इस मोहल्ले में मतलब कि हम भी सर हम आते हैं 8-9 बजे, इस गली से नहीं आते सर, पिछले गली से आते हैं। ये सारे से नशेबाजी का ही करामत है। ये कोई भी बंदा हो उससे मोबाइल लेके आता है, वो मोबाइल छीन लेते हैं। इसके लिए प्रशासन की ही दोष है। हर बार शिकायत ही होंगे 5,000 10,000 लेके बंदे को छोड़ देते हो। मार्केट के लोग छीना झपटी करने वाले जैसे व्यक्ति को पकड़ा के थाने में देते हैं, उसके बावजूद भी थाने से आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो जाते हैं। बॉडी मिली है, उसमें प्रिलिमिनरी जो असी देखा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि बॉडी पे एक हेड इंजरी है, इस करके असी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मर्डर केस है। तो ये अकॉर्डिंगली जो है कागजी कार्रवाई करी जा रही है। फिलहाल जो पुलिस टीम जो है उन्होंने असी लाता है आइडेंटिफाई करने लिए कि कातिल कौन हो सकता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਾਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਵਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਨੇ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCR ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਥਾਣਾ SHO ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ खड़े ने, उन्होंने गल करने की कोशिश करते हैं। आप कब से जानते हो उस लड़के को? सर उसका तो पैदाशी यहाँ हुआ है सर। हाँ जी सर। तो जानते कब से हो आप? सर हम भी यहीं रहते हैं सर, हमको भी यहाँ पे 20-25 साल हो गया सर। क्या कोई दुश्मनी था या कोई नशा पत्ता करते थे क्या? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ड्यूटी तो करता था यहाँ पे, आरती में करता था तो पता ना 2-4 घंटे करके कल आया था तो पता लग गया घूमने के लिए। तो उसके बाद में फिर पता ना आया कि नहीं है। हम लोग तो 8-9 बजे ड्यूटी से आते हैं सर, तो सवेरे पर हम लोग को 8:30 बजे टाइम हो जाता है। एक भाई था मेरा जो जा रहा था ड्यूटी, तो कूड़े बिकने वाला उधर फेंका, बोला कि कोई बंदा एक गिरा पड़ा है, तो वो देखा इसको जैकेट,
तो वो फिर आया तो उसको भाई छोटा था ब्रश कर रहा था, तो उसको बोला कि इसे देखने तुम्हारा भाई गिरा हुआ क्या। तो फिर वो आया तो वो देखा तो फटाफट आया। तो फिर मैं खाना खा रहा था तो मैं बाहर निकला, क्या हुआ, आवाज लगाने लगा सब। तो बोला चाचा ऐसे ऐसा बात है, चलिए ना। तो फिर मैं फटाफट खाना खा के मतलब कपड़ा वपड़ा पाया, फिर हम लोग 2-4 गए। फिर लाला जी को अंदर पता लगा, बगल में ही मतलब रहते हैं। तो फिर वैसे ही पता लगा, फिर प्रधान जी आए, ये सब बात करने लगे। फिर प्लाट में गए हम लोग, तो फिर फोन करने लगे प्रशासन को। तो फिर एक आए 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे के बाद आए? एक आए, हाँ 1 घंटे बाद मान चलिए। तो फिर उसके बाद में फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर 1-2 आए। फिर वैसे करते आने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद फिर एसपी साहब आए। कोई अभी अब तो प्रशासन ही करेंगे। बाकी इस मोहल्ले में सर संडे वाला दिन दोपहर को अगर वहां से लेकर अगर इधर आप क्रॉस करिए गया, कुछ भी कपड़े लत्ता लेने के लिए जाए, मेरा भाई भी आज 2-3 महीना हो गया उधर गया था रंजीत नगर कपड़ा लेने के लिए, उसको मोबाइल छीन लिया। उसको बहनोई को भी एक बार पकड़ लिया था लाइन पे, उसको भी मारपीट किया दिन में ही। मतलब इस मोहल्ले में मतलब कि हम भी सर हम आते हैं 8-9 बजे, इस गली से नहीं आते सर, पिछले वाली गली से आते हैं। यानी कि ये मोहल्ले में वारदातें होते रहते हैं सर, यहाँ से लेकर रंजीत नगर से लेकर मतलब यहाँ तक होते रहते सर। ठीक ना। तो मतलब कि आज हमारे साथ है, कल उसके साथ है, कल उसके साथ है। ड्यूटी वाले बंदे को सर कभी तो 1 घंटा लेट हो ही यहाँ पे कोई पुलिस वाले अधिकारी कोई आते नहीं? नहीं आते सर, कोई नहीं आता? नहीं सर। तो यहाँ पे कोई कंप्लेंट भी आपने कभी नहीं की यहाँ पे कोई ऐसी वारदातें हो? सर कंप्लेंटा तो चलती रहती है सर, कंप्लेंटा परले पास से जो प्लाट है वो हमेशा चलती रहती है, वहाँ पे कंप्लेंटा हमेशा होती रहती है सर। हाँ की कहना चाहोगे तुसी? ये सारे से नशेबाजी का ही करामत है। ये कोई भी बंदा हो उठे मोबाइल लेके आंदा है, वो मोबाइल छीन लेते हैं। इसके लिए प्रशासन की ही दोष है। हर बार शिकायत भी होंगे 5,000 10,000 लेके बंदे को छोड़ देते, वो बंदे को छोड़ देते। हाँ मतलब एक बंदे ने क्राइम किया, बीच कोई है ही नहीं कि मतलब बार बार जाके कंप्लेन करते हैं। हम सब लाले भी जाके बोले, फिर भी कोई इसकी गल नहीं सुनते हैं। मतलब एक बंदे ने क्राइम किया, उसको पुलिस को पकड़वाया, लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के पकड़ाया और उन्होंने पैसे लेके छोड़ दिए। ये हर बार की काम है इनके प्रशासनों की। यहाँ डरते हैं बंदे 11 बजे आने से मोहल्ले बीच, कोई आना नहीं चाहता है रात के टाइम में। रेलवे लाइन के पास कोई भी आए तो 2-3 बंदे होते हैं, वो चाहे चाकू दिखा के या राइफल दिखा के छीन लेते हैं मोबाइल। अब गरीब आदमी 10,000 कमाने वाले, वो 10,000 का मोबाइल लेते हैं, उसके बाद यही काम है इन सब का। सो दोस्तों तो अंदाजी है कि ये अक्सर आए दिन लुधियाने शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੈਚਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਚੈਨੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੋਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? यस सर, यस। कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के बंदे पकड़े हों? यस सर, मैंने तो नहीं पकड़ाया, बाकी मेरे साथ हो चुका 2 बार सर मेरे साथ। अभी ये मोती नगर जो समराला चौक है ना सर, वो थोड़ा सा ही उतरते ही चलती गाड़ी, अभी नया लाया हूँ किस्तों पे ही सर, 80,000 की चलती गाड़ी 40-50 की स्पीड में बंदे आए, पूछे कि समराला चौक जाना। मैंने कहा बाजी पीछे चले जाओ, तुसी आगे आ गए। इतने में दूसरा बंदा जो बैठा था उसने चलती गाड़ी से चाबी निकाल लिया। अच्छा। मेरी चाबी निकालने के बाद मेरे को गाड़ी रोकना ही पड़ेगा सर। मैंने गाड़ी रोका, बंदा चैन खोला, बकरा काटने वाला गरसा नहीं होता सर, बस वही निकाला। मैं तो रोने लग गया। मैं क्या, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबूजी, मेरे को छोड़ दो, जो है ले लो। तो मैंने मोबाइल पड़ा था, मैं मोबाइल निकाला, यही सर ये वाला, ये मोबाइल हमारा। मोबाइल निकाला, बंदा मोबाइल लिया, कवर खोला, ऐसे ऐसे देखा, पता नहीं क्या समझ में आ गया, या मेरा बाली बच्चे का या भगवान का जो भी हो, रहम आ गया उसको। इसमें हाथ डाला, 100-200 जो रुपए थे निकाल लिया।
बंदा बोला यहाँ पे क्या है, मैंने कहा चड्डी पैंट सब उतार दूंगा। दूसरा बंदा बोला इसको साइड ले चलो। मैं क्या भैया नया गाड़ी स्टैंड लगेगा, नहीं स्टैंड पकड़ लो, मैं चेक करा देता हूँ सारा कुछ। जो भी रहम आया, फिर उसने चाबी भी इज्जत से दे दिया मुझे, मोबाइल भी दे दिया, मैंने रख लिया। फिर मुझे धक्का लगा कि ऐसा ना हो यहाँ छोड़ दिया, आगे चल के मुझे फिर पकड़ ले। तो मैंने क्या किया, फिर बंदे को फोन किया किसी को कि आ जाओ भैया। तो वो बंदा आया, 2 बंदे आए मोटरसाइकिल से, फिर वो हमको यहाँ से समराला चौक मोती नगर से लेके घर तक आए। अब इतना डर हो गया सर, अभी संडे को, इसी संडे को 8:30 बजे मैं निकला था मंडी से, जलंधर बाईपास मंडी लगाता हूँ सर। 8:30 बजे घड़ी के देखे निकला, 8:45 हो रहा था, फिर भी मेरे मगर पड़े थे पीछे। अब छोड़ नहीं रहे हैं सर पीछा। अब मैं डर के मारे सोच रहा हूँ मंडी लगाना छोड़ देता हूँ, पर रोटी कैसे खाऊंगा बाबूजी। मेरे भी 3 जवाक हैं, मियाँ बीवी 5 लोग हो गए पाजी, कैसे गुजारा करेंगे। भगवंत मान जी को वोटें भी डाली थी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन गई है जी। फिर ये वारदातें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत ज्यादा। पहले थोड़ा कम था सर, अब तो 100 में 100% हो गया। पहले चलो 70-80% था, अब तो पूरे। क्या कहना चाहोगे भगवंत मान जी को भी, ये वारदातें खत्म करें, कम करें, या और बढ़ा दें, या आप लोगों को पंजाब में से भगा दे, या पंजाब को ताला लगा दे, क्या करें? अब जो समझ में आए बाबूजी, ताला लगा दे, चाहे पंजाब चाहे हम लोगों को भगा दे, बाकी गुजारा जो भी है यहीं से है। पर ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है इसको कंट्रोल करे, दबाव करे, चाहे सरकार बने या छोड़ दें, पर ये कानून जो हो रहा है, जो अत्याचार ज्यादा हो रहा है, इसे थोड़ा कंट्रोल करे। हाँ, दबाव रखें सर, कि हम लोग गरीब आदमी 2-4 पैसे कमाने के लिए, तो आप तो, मैं दूसरे शहर से आया हूँ आपके शहर में, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि जो हो रहा है इसको कंट्रोल करो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं कामरेड विनोद कुमार तिवारी। आज जो शेरपुर में दीपनगर में नौजवान एक मजदूर का हत्या हुआ है, इस हत्या के पीछे मैं स्पष्ट तौर पे जिला प्रशासन को और खासतौर पे स्थानीय थाने मोती नगर के स्टाफ पे, SHO पे खुले तौर पे आरोप लगाना चाहता हूँ। क्यों कि प्रशासन को पता है कि इस एरिया में जिस्म फरोशी का धंधा, नशा तस्करी का धंधा, छीना झपटी का धंधा, यहाँ तक कि जुआ सट्टा का भी धंधा चल रहा है। उसके शिकायत करने पे भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े ही शर्म की बात है कि मार्केट के लोग छीना झपटी करने वाले जैसे व्यक्ति को पकड़ा के थाने में देते हैं, उसके बावजूद भी थाने से आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो जाते हैं। फिर भी इस एरिया के माननीय SHO महोदय का या तमाम बड़े अफसर साहबान का कान में जू नहीं घूमते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पंजाब की धड़कन हब लुधियाना कहा जाता है, और इस पंजाब की सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए कि लुधियाने से मजदूरों का पायलन क्यों हो रहा है। अगर मजदूरों की सुरक्षा नहीं होगी, मजदूरों को बचाव नहीं होगा, तो मजबूरी में मजदूर यहाँ से पायलन करेंगे और इंडस्ट्री तबाह होगी। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन और खासतौर पर इंडस्ट्री एरिया के जो भी अफसर साहबान है, वो इस बात में, इस काम में जरूर कुछ ना कुछ मिली भक्ति है, ताकि मजदूरों पे हमला हो रहा और लूट खोरा ऐसी दिन देखने को मिल रहा है। एक यहाँ के स्थानीय लोग जो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पे चोरों को पकड़ाते हैं और 5-10 हजार रुपए देकर चोर फिर से छूट जाते हैं। सच्चाई बोल रहे हैं, यही है, ये सत्य है। एक लोग हजारों गिनती में खड़े, पूछ लीजिए आप, सच्चाई यही है। जबकि थाने से, हवालात से, हथकड़ी सहित जब चोर भाग सकते हैं, तो आप समझिए कि हवालात से चोर हथकड़ी सहित कैसे भाग सकते हैं बिगर मिला भक्त के। सच्चाई यही है। साडे ADCP 4 जो है ना तुषार गुप्ता जी भी मौजूद है, जो IPS अफसर ने, उन्होंने गल करते हैं की हैगा पूरा मामला और हुण तक की आइडेंटिफाई हुई पई है बॉडी के नहीं। सर जिहड़ी अज बॉडी मिली हैगी है, इहदे च की लगदा की हो सकदा? बॉडी मिली है, उसमें प्रिलिमिनरी जो असी देखा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि वो बॉडी पे एक हेड इंजरी हैगी, जिस करके असी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मर्डर केस है। तो ये अकॉर्डिंगली जो है कागजी कार्रवाई करी जा रही है। ते नाल जो पुलिस टीम्स है उन्होंने असी लाता है आइडेंटिफाई करने लिए कि कातिल कौन हो सकता है। जी सर, ये मुंडे की पहचान हुई किस नाम ते सीगा? मुंडा जो है ਉਹਦਾ नाम विकास हैगा, ते वो शेरपुर कॉलोनी का रहने वाला है, घर ਉਹਦਾ ਨਾਲ ही हैगा जी। एंड इस चीज़ ਨੂੰ यूज उम्र ਉਹਦੀ 19-20 साल ਦੀ है जी। बाकी ਅਸੀਂ देख रहे हैं। सर जी बॉडी मिली है भी इंदियां अखा उखा भी कहते काफी बाहर से, कोई ओवरडोज का कोई मामला तो नहीं सामने आ रहा? सारा कुछ वेरीफाई कर रहे हैं जी, जो भी गल निकलती है वो सारे नाल सांझी की जाएगी जी।
ਤੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਨ ਕੇਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਥਾਣਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, जो भी आरोप है वो मैंने इन्होंने बुला लिया, मैंने डिस्कस कर लेंगे जो भी इन्होंने इशूज हैं उन्होंने असी अकॉर्डिंगली जो है रिजॉल्व भी करेंगे। नाल इन्हों की मांग है कि इतने पुलिस चौकी बनाई जाए, उसकी भी वायबिलिटी और फिजिबिलिटी देख के अगर पॉसिबल होगा तो बिल्कुल बनाई जाएगी। बिल्कुल इतने कहते हैं वारदातां आए दिन होंदी ही रहिंदियां ने। नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स हैगी हैं वो अकॉर्डिंगली रिजॉल्व कराई जाएंगी, मेरी नॉलेज में सारे के सारा ले आएंगे जी। बिल्कुल आइडेंटिफाई कर ली गई है बॉडी और बॉडी का नाम जो दसिया जा रहा है विकास दसिया जा रहा है वा, और हुण देखना आऊगा भी ये ओवरडोज का मामला निकलता है या कत्ल का मामला निकलता है। हालांकि पुलिस इनू कत्ल मन के चल रही हैगी है, मर्डर मन के चल रही हैगी है। हुण देखना आऊगा भी इस दा खुलासा कदों तक ये हो सकता है और इत्थे जिहड़ियां वारदातां हो रही ने और इत्थे चौंकी की भी मंग की जा रही हैगी है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਜੋ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਚਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।